Hey guys, good morning everyone. Today we are going to start a new chapter that is sentences. Okay, earlier we have also seen about sentences. So today we are here with the another topic of sentences. Okay, and that is kinds of sentences we are going to learn. You must have heard about kinds of sentences, right? So let's see what are the things we are going to learn today. But before that, I want to ask what is sentence? If you know the answer, you can comment that in the comment section and give the examples also if you want to. And what does sentence contain? These two question answer you have to give it in comment section. Okay, what is sentence and what does sentence contain? Okay, let's see. So today we are going to learn in this lesson sentence kinds on the basis of function, okay, and sentence kinds on the basis of structure. Yeah. So हम लोग सेंटेंस का दो काइंड देखने जा रहे हैं, एक जो फंक्शन पे बेस्ड होगा और एक जो स्ट्रक्चर पे बेस्ड होगा. ओके, फंक्शन पे बेस्ड होने वाला कौन कौन सा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस. सेंटेंस काइंड पे क्या है, स्ट्रक्चर पे क्या बेसिस है? तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ओके, सो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये दोनों का मिक्सचर है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स ये दोनों का. ठीक है, सो वी आर फर्स्ट विल स्टडी सेंटेंसेस काइंड्स ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन. फंक्शन के बेस्ड पे फर्स्ट विल स्टडी sentences. Okay, and first we'll study the first part of this functions based sentence, that is declarative sentence. Okay, so declarative sentence, when we use declarative sentence, so it is used to make or express a direct statement that gives information, and it is written in present tense. Present tense means सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है ना, लाइक एस और येस वाला. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज इज रिटन इन विच टेंस? इट इज़ ऑलवेज रिटन इन प्रेजेंट टेंस एंड इट ऑलवेज कन्वेज अ क्वेश्चन, always conveys a direct statement for giving an information. Okay, and it consists a subject and a predicate. Okay, for example, you can see he runs, she sings, I like climbing, my cat is black, he loves pizza, the weather is warm and sunny, a perfect day for a picnic. So you can see declarative sentence is used to express a direct statement that gives information, and it is written in present tense. Okay, let's see to the another types of functions sorry function based structure, that is interrogative sentences. Okay, it is used to ask question that seeks information or an answer. Okay, so there I have written a extra a, that will be a wrong. They end in a question mark. Yes, interrogative sentence, it is very easy to identify or to answer in a question, right? Because it always asks question and it ends with question mark. So it is very easy to understand. But some of the rules which we have to follow, or some of the uses of interrogative sentences, and what are they? So interrogative sentences can be a yes no question, can be yes no question with modal auxiliaries, can be WH questions, can be alternate question, or can be question tags. Okay, so this you have to remember that there are different kinds of interrogative sentences also. ठीक है, उसमें first है yes no question which expect the listener answer with yes or no. When we are asking, do you want a glass of water, he or she will say yes or no. Okay, are you coming with me to the party, they will say yes or no. तो yes no question होता है. दूसरा yes no question होगा with modal auxiliary, जैसे may I come in, can I go to washroom. So उसमें क्या होगा, जो सुन रहा है the listener will say yes or no. Okay, जो सुन रहा है वो yes, जैसे we are telling to our ma'am, may I go to toilet, she will say that yes you can go. May I take a leave, she will or he will say yes or no. Okay,
WH questions, they expect the listener to answer the question. Yeah, of course, when we are asking what is your name, they will say direct sentence, direct answer that my name is such and such. Okay. Alternate questions, this require the listener to convey his or her choice of opinion when answering. Means, would you like some tea? तो उन पे डिपेंड करता है वेदर दे विल से येस और नो. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है लाइक येस नो क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट वाली की तरह, बट ये उनकी चॉइस है पूरी तरह से वेदर दे वांट टू प्रेफर कॉफ़ी और नॉट. ओके. क्वेश्चन टैग, these are very short questions, means only verb plus subject इसका होता है. ठीक है. added at the end of the declarative sentences, मतलब declarative sentences का मतलब क्या हो गया? So declarative sentence तो वो हुआ ना जो एक्सप्रेस करता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, जैसे he runs, she shrinks, ऐसा होता है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वैसा वो यूज़ होता है. ठीक है. क्वेश्चन टैग लास्ट में इसको यूज़ करते हैं. जैसे आप बोल सकते हो शी इज़ रनिंग वेरी फास्ट, और लास्ट में कॉमा के बाद हम लोग ऐड करेंगे क्या? इजंट सी. इजंट सी लिख के क्वेश्चन मार्क. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इज द क्वेश्चन पेपर हार्ड, इजंट इट, ऐसा ये क्वेश्चन टैग होता है. ठीक है. लेट्स मूव टू द अनदर टाइप्स ऑफ ये functions based sentences, and that is imperative sentence. So a sentence that gives a command or a request to do something like sit down, hand me that bottle are imperative sentence. मतलब ये sentences वो होंगे जो gives a command, वो command और request जैसा साउंड करेंगे. ठीक है. या तो डांट के बोलेंगे या तो प्लीज़ करके बोलेंगे. ठीक है. हाउ टू आइडेंटिफाई इम्परेटिव सेंटेंस, अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इट्स पंचुएशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड विथ अ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप, और समटाइम्स इट एंड्स विथ एक्सक्लेमेशन. तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ अगर यूज़ है तो तभी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या इम्परेटिव है. तो फॉर दैट आई एम टेलिंग यू कि इसका पंचुएशन इंपॉर्टेंट होगा. दूसरा, लुक एट द वर्ब एज इट बिगिनस विद द वर्ब दैट इशू ए कमांड, और ये हमेशा उस वर्ब से स्टार्ट होता है जो कमांड होता है, मतलब ऑर्डर होता है. ठीक है. जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू दिस, कम इन, ऐसा होता है. ठीक है. फिर सब्जेक्ट इज इम्प्लाइड और अंडरस्टूड, मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड रहता है, वो क्लियरली नहीं रहता है. जैसे आप लोगों ने कल भी पढ़ा था सेंटेंस में कि सब्जेक्ट उसमें छुपा रहता है. जैसे लाइक गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो उसमें यू छुपा हुआ है, यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ऐसा. तो उसमें सब्जेक्ट क्या रहता है? छुपा रहता है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई इम्परेटिव सेंटेंस, तो इसका ये होगा. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो और आई विल शेयर द पीपीटी. ओके. तो एग्जाम्पल इसका है पास द सॉल्ट, गेट आउट, वेट फॉर मी, डोंट ईट ऑल द कुकीज़. ये रिक्वेस्ट और कमांड हो गया. या तो डोंट ईट कुकीज़, ऑल द कुकीज़, और डोंट ईट ऑल द कुकीज़. सो दिस विल बी द आंसर. Please join us for dinner. This can be the invitation, as how I am telling you. Please join Google Meet. Right? It is an invitation. Wear your gold necklace with the dress. It is a advice कि आप suggestion दे रहे हो कि भाई ऐसा ऐसा पहनो. It will look good. Okay. Please join on MS Team. This is also invitation. So uses of imperative sentence. When we are using this imperative sentence, what are their uses? So it is used for suggestion, advice, or warning. It is used as request. It is used as command or instruction. Or it is used as invitation, and it is also used as permission or prohibition. Okay. So इन सब चीज़ों के लिए imperative sentence का use करते हैं. If you want some more explanation, you can ask to me and I will explain you more in detail. Okay. But I think from this video you will be able to understand all the things. बस इतना है. Listen it carefully. That's it. Now see the another types of function based sentence, that is exclamatory sentence. Exclamatory sentence. This sentence which expresses sudden and intense excitement. Yes. वो अचानक और बहुत तेज वाला होना चाहिए. जैसे अभी IPL स्टार्ट हो रहा है. When you heard the IPL news that it is going to start from 19 Sep, तो आपका क्या था रिएक्शन? अरे वाह. वो एक सडन हुआ, अचानक हुआ और बहुत दिल से निकला हुआ, इंटेंस है. ठीक है.
डिस्गस्ट, एडमिरेशन, शॉक और सॉरो, ठीक है। कोई किसी का हम लोग डेथ का न्यूज़ सुनते हैं, जस्ट लाइक सुशांत सिंह राजपूत, तो वी लाइक ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड, तो वी गॉट इन वेरी सॉरो स्टेट. So it is that sentence, it is known as exclamatory sentence, and this kind of sentence must have exclamation mark. Yes, must, at the end of or in the middle of the sentence. जैसे आप लोग देख रहे हो योर फादर इज स्लीपिंग, तो उसमें वहाँ पे मिडिल ऑफ द सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया गया. फिर व्हाट अ बोरिंग डे, तो ये लास्ट में यूज़ किया गया, ठीक है. Exclamatory sentences is used with a noun, means what with a noun like what a victory, what a beautiful sunset, or using how with an adjective and adverb. How absurd all this sound, how careless are you. So exclamatory sentences कब use होता है, वो क्या express करते हैं, and how it is used, as you can see in the example also. And let's move to the another type of function based sentence, that is optative sentence. Now what is this optative sentence? It is very easy to recognize. The sentence which express a prayer, keen wish or curse. मतलब एक प्रेयर, प्रार्थना, विश दिल से किया हुआ विश, या कर्स या मतलब बद्दुआ देना, ओके. तो इट इज़ कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. दिस काइंड ऑफ सेंटेंस जनरली स्टार्ट्स विथ मे और विश. या तो मे से वो स्टार्ट होता है या तो विश से स्टार्ट होता है, ओके. और कभी कभी समटाइम मे रिमेन्स हिडन, और कभी कभी क्या होता है, मे जल्दी एक्सप्रेस नहीं होता है. जैसे आप लोग देख रहे हो सेकेंड एग्जाम्पल, लॉन्ग लीव द किंग वेस्ट्रस, ओके. तो वहाँ पे मे छुपा हुआ है, बट मे लॉन्ग लीव द किंग वेस्ट्रस. सो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है प्रेयर, किन विश और कर्स. So this is all about the sentences which are based on function, okay. फंक्शन बेस्ड सेंटेंसेस था ये. तो उसमें क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन और इट इज़ ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, ओके. फिर इंट्रोगेटिव था, दैट इंट्रोगेटिव ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, ओके. फिर इम्पेरेटिव था, दैट इज़ यूज टू गिव अ कमांड, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग, इन्विटेशन, परमिशन, ओके. फिर एक्सक्लेमेटरी है, जो सडन और इंटेंस एक्साइटमेंट को एक्सप्रेस करता है. और लास्ट हम लोग ने देखा ऑप्टेटिव, विच ऑलवेज एक्सप्रेस अ प्रेयर, किन विश, कर्स, एक्सेट्रा, ओके. So this is all about what? Sentences based on function. Now we'll see sentences kinds on the basis of structure. Now we'll see sentences based on structure. Okay, उसमें क्या क्या हम लोगों ने देखा था? Simple sentence, compound sentence, complex sentence and compound complex sentence. Let's see. सबसे पहले clause को देखते हैं. What is clause? So a clause is a group of word which has a subject and a predicate and it is the part of a sentence, correct? ठीक है. clause को subject और verb होते हैं, right? अभी देखते हैं clause में दो टाइप के clause होते हैं, independent clause और dependent clause, ठीक है. मेन क्लॉज हम लोग नहीं पढ़े हैं. मेन क्लॉज में होता है ना कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं, मतलब आज़ादी. इंडिपेंडेंट का मतलब वो आज़ाद रहता है, इट डज़ नॉट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प. लेकिन इधर जो लिखा हुआ है डिपेंडेंट क्लॉज, सबॉर्डिनेट क्लॉज जैसे हम लोग ने पढ़ा है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नॉन क्लॉज हम लोग पढ़ा है ना ये वाला. तो ये डिपेंड रहते हैं ऑन द मेन क्लॉज, मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड रहेगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई लर्न वॉट एवर आई कैन. अब देखो वॉट एवर आई कैन वी विल से, देन इट डज़ नॉट कंप्लीट सेंस, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना. तो उसको डिपेंड पूरा होने के लिए उसको किसका हेल्प लेना पड़ रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज का उसको हेल्प लेना पड़ रहा है, ठीक है. तो आई लर्न आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सेंटेंस क्लियर कर दे रहा है, मीनिंग क्लियर कर रहा है, ठीक है. इंडिपेंडेंट क्लॉज का यही खासियत है कि वो हमेशा मीन्स वो आज़ाद रहता है, इट डज़ नॉट नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प ऑफ अदर सेंटेंसेस. लेकिन ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसको हमेशा किसी न किसी का ज़रूरत रहेगा टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. गॉट इट. फिर देखो सेंटेंसेस से क्लॉज बना है, ठीक है. मतलब सेंटेंस में क्लॉज रहेगा. अब क्लॉज दो तरह के होते हैं, ठीक है. मीन्स एक रहेगा, एक सेंटेंस में रहेगा वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, या तो वन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ठीक है. एक से ज़्यादा रहेगा या तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है सेंटेंस में, ठीक है.
और उसी सेंटेंस को हम लोग 4 टाइप्स में बांट देते हैं, दैट इज सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो हम लोग ने देखा है कि क्लॉज एक सेंटेंस में रहता है और वो क्लॉज सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लॉज बन के रहते हैं या तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ने 4 टाइप का सेंटेंसेस अभी देखने जा रहे हैं ऑन दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंपल सेंटेंस। अभी सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट क्या करता है, तो इसके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट होगा। ठीक है, इट शोज कंप्लीट मीनिंग, वो कंप्लीट एकदम मीनिंग रहेगा और इसमें कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं रहेगा, मतलब इसमें कोई भी सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, होल्ड ऑन ए सेकेंड। ओके, आई थिंक सो यहाँ पे डिपेंड होगा, डिपेंड क्लॉज नहीं रहता है क्योंकि ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहता है, तो इसके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा और सिंपल सेंटेंस में वो एकदम फ्री रहता है। फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू हाउस, तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है और इसके पास कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं, ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी की ज़रूरत नहीं है इसे। ही गोज़ टू जिम एवरी डे, ऑफकोर्स ये पूरा कंप्लीट सेंस दे रहा है और इसे किसी भी सेंटेंस की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी टू द अनदर एग्जाम्पल, अनदर टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, या इसमें क्या होता है ना, एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब 2 से ज़्यादा फ्री क्लॉज रहेगा, जो जिसमें कोई भी मीन्स कोई भी तरीका का वो क्या बोलते हैं, डिपेंड नहीं है वो एक दूसरे पे। इट इज़ जॉइंड बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, तो इसको बोलते हैं फैन बॉयज़, ये एक्रोनियम में आप लोग स्टडी कर सकते हो। फैन बॉयज़ का मतलब है ना कि ये 2 सेंटेंस को जोड़ेगा। ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ेगा वो, और कैसे जोड़ेगा, तो फोर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सब है। ठीक है, यूज टू ऐड 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक्रोनियम इसको क्या बोलते हैं, फैन बॉयज़। ओके, देर इज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज, और इसमें भी कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, इसके पास दोनों क्लॉज होगा और दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होगा, मतलब किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, वो फ्री रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे आई हेल्प्ड हिम एंड ही गॉट हैप्पी। अब यहाँ पे एंड यूज़ किया गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, 2 क्लॉज को जोड़ने के लिए, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए। एक है आई हेल्प्ड हिम और दूसरा ही गॉट हैप्पी, दोनों का सेंस भी निकल रहा है। और एज वी नो क्लॉज को क्या होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट ही क्लॉज होते हैं। ठीक है, ही इज सिक येट ही इज वर्किंग, येट इज यूज एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, he is working is independent clause, he is sick is also independent clause. Now we'll move to the another types of sentences, that is complex sentence. Okay, अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या क्या रहता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इसके पास एक इंडिपेंडेंट होंगे एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट, मतलब एक तो आज़ाद होगा और एक जो होगा वो पूरी तरह से मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शन, जैसे लाइक ऑल दो, सिंस, व्हेन, अनलेस। फिर जॉइंड बाय रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, हु, विच। ओके, एग्जाम्पल है शी इज़ वियरिंग अ स्कर्ट, ये तो आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और पूरी मीनिंग इसकी है। ठीक है, लेकिन आप दूसरा देखो, लुक्स ऑसम, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसको पूरा करने के लिए फर्स्ट वाले पे डिपेंड होना पड़ेगा। ठीक है, तो और इट इज़ एडेड बाई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज़ विच। ओके, इट इज़ सॉरी इट इज़ यूज मीन्स जॉइन किया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन से, विच। ओके, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन या तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम लोग यूज़ करते हैं। अभी कुछ पॉइंट्स है टू रिमेंबर अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है ना, अगर पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ किया गया पहले, तो उसमें कोई कॉमा नहीं होगा, लेकिन अगर बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज को यूज़ किया गया, मतलब पहले डिपेंडेंट को, तब कॉमा लगेगा। ठीक है, तो इफ़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिगिन विथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट में देख रहे हो, ही स्कोर्ड वेल इन एग्जाम ऑल्दो ही वाज सिक, तो ऑल्दो ही वाज सिक इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, वो बाद में आया और पहले ही स्कोर्ड वेल इन एग्जाम, ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, तो वहाँ कॉमा नहीं है।
दूसरे में अब देखो, इफ़ ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिगिन विद डिपेंडेंट क्लॉज तो कॉमा वहाँ पे यूज़ होगा आफ्टर द डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। मतलब ऑल्दो ही वॉज सिक, इसको तो पूरा करने के लिए दूसरे का हेल्प लेना पड़ रहा है ना, ही स्कोर वेल इन एग्जाम, तो डिपेंडेंट क्लॉज जहाँ भी खत्म होगा वहीं पे आप एक कॉमा लगा के बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मिक्सचर है, ठीक है। तो इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। या इसमें 2 कम से कम, मतलब 2 कम से कम इंडिपेंडेंट, मतलब फ्री फ्री वाला क्लॉज रहेगा, और एक इसमें रहेगा डिपेंड वाला जो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ही वेंट टू द कॉलेज and I went to the market where I bought a new book. Okay, here you can see what एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और 1 डिपेंडेंट क्लॉज है, राइट। आई बॉट अ बुक, तो यहाँ पे ही वेंट टू कॉलेज हो गया आपका क्या, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ठीक है। और इट इज़ एडेड बाय एंड और वेयर, ये सेंटेंस पूरा ऐड किया हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ेगा, क्योंकि कंपाउंड में तो सबऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेटिंग होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेटिंग और रिलेटिव होता है। तो ये दोनों मिलके एक मिक्सचर बनेगा और ये मिक्सचर बन के क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कंपाउंड में तो 2 इंडिपेंडेंट रहता है, कॉम्प्लेक्स में 2 इंडिपेंडेंट प्लस एक डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो व्हाट वी हैव सीन अबाउट सेंटेंस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, वी हैव सीन अबाउट अ सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस में हम लोग देखें क्या कि वो एक तो इंडिपेंडेंट क्लॉज रखेगा और मीन्स इंडिपेंडेंट रखेगा और वो फ्री रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज, और उसमें हम लोग ये भी देखें 2 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दैट इज फैन बॉयज हो गया, और कॉम्प्लेक्स में होगा एक इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट रहता है, और कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो भी है ये वाला तो ये तो पूरी तरह से मिक्सचर है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, ठीक है। So this is all about the means video. I hope you must have means understood this video, and please watch it carefully. If you have any kind of doubt, you can ask to me, and wherever you find difficulty to understand, you can just ask to me. Okay.